Whether young or old, the importance of mental health for total well-being cannot be overstated. When psychology wellness is affected, it can cause negative behavior that may not only affect the personal health but also affect the daily routine of one. Our mental health encompasses our psychological, emotional, and social well-being. This means it impacts how we feel, think, and behave each day. Our mental health also contributes to our decision-making process and how we cope up with stress and how we relate to our decision-making process. Being healthy emotionally can promote productivity and effectiveness in activities like prevention and mental health promotion strategies and strengthening research, information systems for mental health. To fulfill our intent for the day, we have with us Sister B.K. Kamla ma'am, a Rajyog teacher with Brahma Kumaris and a strong speaker having expertise in dealing with corporate segments. She has been addressing professionals at all levels of corporates to enable them to gain accurate understanding of how one's potential could be accessed and put to the best use by way of spiritual lifestyle. She has a master's degree in crisis management and self-management, as well as in the value education and spirituality. With an experience of 36 years in association with the Brahma Kumaris organizations. Now, I would like to invite our director, sir, to offer a sapling to Sister B.K. Kamla ma'am as a gesture of gratitude. We are delighted to have you, ma'am, today with us. Now, I would like ma'am to take over the session from here. These are very, very powerful words. Right? And you know what it means? And I would, okay, before we begin talking about something, I would want to have attention from each and every one of you. Is that okay? Hanji bachcho, piche, the second but last row. I will need attention from everybody. That's how I interact with people, right? Are you all here? Yes. Thank you. अच्छा, आप खुश दिखना चाहते हैं या खुशी फील करना चाहते हैं? हाँ जी? फील करना चाहते हैं, दोनों। पहले कौन सा? फील करना चाहते हैं, क्योंकि जब फील करते हैं तो दिखेंगे अपने आप से, वो छिपाया नहीं जा सकता ना। अच्छा, दूसरा, आज हम मेंटल वेलबींग के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब, अगर हम इसकी सिंपल भाषा में बात करें, तो मन की शक्ति को बढ़ाना ही मेंटल वेलबींग है, ऐसा ही है ना? मन की शक्ति को बढ़ाना मेंटल वेलबींग है। आप में से कौन कौन अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं? चाहने की बात है, हो रही है नहीं हो रही है बात अलग है। कौन कौन चाहते हैं बढ़ाना? बस, बाकी पीछे वाले तो चाहते ही नहीं है। अच्छा, सभी चाहते हैं। कौन कौन पुरानी बातों को मन में चलाते हैं कभी कभी? अब हाथ उठे हैं सारे। अच्छा, कौन कौन बहुत ज्यादा आगे की चिंता भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं? गुड। एक होता है नियर फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, विच इज फाइन, पर मेरा क्वेश्चन था बहुत ज्यादा आगे की चिंता करना। ठीक है, वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग टुडे। जैसे अभी सिस्टर ने बहुत अच्छे से मेंटल वेलबींग में क्या क्या आता है उसके बारे में बताया, कि हम अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएं और हम अपने इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, उन सब चीज़ों के लिए स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अच्छा, स्ट्रेस कभी होता है या किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं? स्ट्रेस होता है? होता है? ये किस किस को होता है? अच्छा, इस चिड़िया को सभी ने देखा हुआ है ना? हाँ, तो देखो, स्ट्रेस होना चाहिए? क्वेश्चन, होना चाहिए? ओके, कौन कौन कहता होना चाहिए? रेज योर हैंड, देयर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर्स। ओके, कौन कौन कहता है नहीं होना चाहिए? ओके, मिक्स्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, आपने कहा आपको मन की शक्ति चाहिए, फिर आपने कहा आपको स्ट्रेस भी चाहिए। अब ये दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा
कि हम सबसे पहले अपनी मन की शक्ति के बारे में बात कहाँ है। तो अक्सर लोग कहाँ हाथ लगाते हैं, कहाँ हाथ लगाते हैं? कहते हैं मन यहाँ है, पर ये तो दिल है ना, मन कहाँ है? हाथ को तो दिल बोला जाता है, मन थोड़ी बोला जाता है। देखिए, पहले हम अगर मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मेंटल वेलबींग इंश्योर करना चाहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, पहले मन तो पता चले कहानी के अंदर होता है ना, वो सारे उसके पुर्जे होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। They are not powers, they are organs in the body, different parts of the body. जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? हमेशा माथे के बीच। सोचने वाली बात है, 4 to 6 feet body we all have, right? But we don't apply tilak, bindi or tika anywhere else in the body. Not here, not here, not in the hands, not in the legs, but only on the forehead. Can you tell me reason why? Can you tell me a reason why, sister? Third eye. बता सकते हैं क्यों? 4 से 6 फुट का शरीर सभी का है, लेकिन लगाते हमेशा माथे के बीच में है। क्यों ऐसा ब्रदर? क्यों ऐसा? सोचने वाली बात है। सोचो सोचो, आंसर मिल जाए तो बताना जी। हाँ जी, देखो, जहाँ हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पर हमारी आत्मिक शक्ति, जो सोल पावर है ना, एक डिवाइन लाइट के समान, एक प्रकाश के पुंज के समान सदा ही विराजित रहती है। जो भी हम करते हैं, हम यूं ही नहीं करते हैं कभी भी, उसके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक महत्व होता है। ऋषियों और मुनियों के जमाने से हम जितने भी तिलक लगाना, दिया जलाना, माला पहनाना, इंसान को याद रहे, वो भूल ना जाए कि उसके इस पूरे शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा शक्ति है ना, जो आत्मिक शक्ति है, वो मस्तक के बीच एक डिवाइन लाइट की तरह सदा काम करती रहती है। और इस सिंबल को लगाते लगाते हम भूल ना जाएं, याद रखें, वो शक्ति ही उसका खजाना है। और उसको कुछ लोग रूह की शक्ति कहते हैं, कुछ आत्मिक शक्ति कहते हैं, कोई सोल पावर कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, अलग अलग नामों से उसको जानते हैं, पर है हमारी अपनी आत्मिक शक्ति, ऊर्जा शक्ति। और आपको पता है, इस डिवाइन, आई कैन सी द डिवाइन लाइट्स इवन नाउ ऑन ईच ऑफ द फोरहेड, स्पार्कलिंग ब्यूटीफुली। इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ ऑल दैट वी हैव इन आवरसेल्व्स। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छाइयाँ हमारे अंदर होती हैं। ये जो आत्मिक शक्ति है, सोल पावर है, इसके अंदर 3 शक्तियाँ काम करती हैं। Do we have a presentation ready here? How can I change it or? Hamati welcome. अच्छा, आप यहाँ से ओपन करेंगे, कोई बात नहीं। Power, it's not an organ, right? So शक्ति के अंदर शक्तियाँ होती हैं, शरीर के अंदर पुर्जे होते हैं। So here is a physical body which has different parts, which is one of the part is the heart. But here is a soul which is a power, एक शक्ति है। उस शक्ति के अंदर 3 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति। इसीलिए आप देखो, हमारी जो सर्जरीज वगैरह हम लोग अक्सर करके लोग करवाते हैं, सर्जरीज, हार्ट की सर्जरी हो सकती है, मन की सर्जरी नहीं होती है। पावर ऑफ माइंड कहते हैं, पावर ऑफ हार्ट कहते हैं? पावर ऑफ माइंड, बिकॉज माइंड इज अ पावर, राइट? ऐसे ही इस आत्मिक शक्ति के अंदर, इस सोल पावर के अंदर जो दूसरी शक्ति है, वो है पावर ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि की शक्ति। आज किसी से पूछा जाए कि आपकी बुद्धि कहाँ है, तो अक्सर हाथ कहाँ लगाते हैं? यहाँ है। पर ये तो मस्तिष्क है, ब्रेन है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। इंटेलेक्ट इज अ पावर, ब्रेन इज एन ऑर्गन अगेन। वन कैन हैव अ सर्जरी इन द ब्रेन, बट इंटेलेक्ट कैन नॉट बी ऑपरेटेड। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ? तो मन की शक्ति को बढ़ाना है, तो पहले ये तो पता चले मन इसके अंदर है कहाँ, है ना? तो इस मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, और तीसरी शक्ति है हमारे संस्कारों का बल। आज हम विशेष माइंड और इंटेलेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, कभी भी किसी को स्ट्रेस होता है ना, वो 3 कारणों से हो सकता है।
ज्यादा से ज्यादा। एक सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है, तो मन भारी होता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। आपको पता है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा किसको स्ट्रेस चाहिए, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया और किसी ने कहा नहीं स्ट्रेस नहीं चाहिए। देखो, स्ट्रेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी, आप लोग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं पर बेसिक साइंस तो हम सभी ने स्कूलिंग में पढ़ी होगी, और स्ट्रेस की साइंटिफिक इक्वेशन पता क्या कहती है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर मीन्स दबाव, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल सिचुएशन या एक्सटर्नल कोई भी कारण है उसका दबाव, डिवाइडेड बाय रेजिलियंस मीन्स डिवाइडेड बाय हमारी इनर पावर। रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ, राइट, इनर स्ट्रेंथ। तो जितना जितना न्यूमरेटर बढ़ेगा, या कहें जितना जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा, उतना न्यूमरेटर वीक हो जाएगा। लेकिन न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कमजोर हो, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू प्रेशर, है ना, इक्वेशन बनता है। तो देखो, हमें सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छे से एक्टिव रहने के लिए, बेस्ट डिसीजंस लेने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, वी नीड आवर पॉजिटिव पावर्स, वी नीड पॉजिटिव थिंकिंग, वी नीड पॉजिटिव एटीट्यूड, वी नीड इमोशनल स्ट्रेंथ, वी नीड अ गुड एटीट्यूड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। वी डोंट नीड स्ट्रेस एंड एंगर। हमें ये तो ऐसा है जैसे लोग कहते हैं ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आना ही चाहिए ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा। ये तो ऐसे है जैसे ये कहना थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम तो होते ही रहना चाहिए ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम हेल्दी हैं। ये ऐसे है। हमें जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, मेंटली एम्पावर्ड फील करने के लिए वैल्यूज की जरूरत है, बीमारियों की जरूरत नहीं है। एंड स्ट्रेस इज अ मेंटल डिसीज, dis-ease, where we are not at ease, right? So we don't need stress. So let's have that clarity once. आप सोचना इसके विषय पर, जरूरी नहीं है अभी स्वीकार हो, पर आप सोचना। We need powers, we don't need stress. लेकिन जब हमारे अंदर शक्तियां कम हो जाती हैं, we tend to get stressed, and then we feel कि हो सकता है स्ट्रेस में आने से रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। नहीं, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे अंदर है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, दैट इटसेल्फ इज इनफ फॉर मी टू बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इस मन की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? माइंड का काम क्या है? मन की शक्ति कहते किसको है? देखो, मन का एक काम है, वो सोचता है सारा दिन। द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू क्रिएट थॉट्स। आप में से कौन कौन यहाँ बैठे हैं जो सोचते हैं? जो सोचते हैं। अब आप फिर मुस्कुराएंगे, ये क्या बात है, सभी सोचते होंगे। अच्छा, कितना सोचते हैं? बहुत बहुत बहुत, हाँ बहुत। हाँ, हम लोग मेडिटेशन सेंटर पर रहते हैं, तो अक्सर कुछ लोग कोर्सेज करने आते हैं, मेडिटेशन कोर्सेज। तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं सिस्टर, आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा कर सकता है क्या, थोड़ा देर के लिए सोचना बंद कर दे। सोच सोच के सिर में दर्द हो गया है, सोच सोच कर आजकल रातों को नींद नहीं आ रही है, और अगर हम बाई चांस सो भी जाते हैं ना, गलती से कभी सो गए, तो सुबह उठने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सोए थे। ऐसा लगता है सारी रात मन चल रहा था। होता है ऐसा किसी के साथ? आजकल ऐसा बहुत होता है। आपको पता है, सोचना बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता है। सो प्लीज डोंट एवर ट्राई दैट ऑल्सो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। इंसान सोचने से परेशान नहीं होते हैं, ज्यादा सोचने से परेशान होते हैं। सोचने से परेशान नहीं है, कोई अपना काम ठीक से कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मन का काम है सोचना, वो सोच रहा है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं ना, तब प्रॉब्लम होती है। तो आज हम सबसे पहले मेंटल वेलबींग के लिए, अपने मन की स्वास्थ्य के लिए, सबसे पहले विचारों के बारे में ही जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि मन का काम है सोचना, वो सिर्फ एक ही काम करता है, सारा दिन सोचता है। लेकिन वो जो सोच चलती है ना, हमारी विचार जो चलते हैं, थॉट्स जो क्रिएट होते हैं,
उसकी क्वालिटी को अभी हम चेक करते हैं। 4 प्रकार के थॉट्स हो सकते हैं जो हमारे मन से क्रॉस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई थॉट्स होते नहीं है। 2 प्रकार के थॉट्स तो आप भी बता दोगे, कौन कौन से? राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब लोग कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है भाई, नहीं सोचते फिर क्या सोचें? लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो। अच्छा, पॉजिटिव वो कैसे सोचना होता है? हम सबको ये पता है पॉजिटिव सोचना अच्छा है, पॉजिटिव सोचने से लाइफ अच्छी होती है, पॉजिटिव सोचना जरूरी भी है आज के समय में। लेकिन कैसे? वही तो नहीं हो रहा आज, पता है पर हो नहीं रहा। पॉजिटिव थिंकिंग कहते किसको है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोचती हूँ? कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना कह रहे हैं। ओके, मैंने कहा मैं कभी किसी को दुख नहीं देती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव हूँ? अच्छा, फिर क्या है? नेगेटिव है। नहीं है इसलिए नेगेटिव आ गया। ओके, तीसरा है मैंने कहा मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा, दोनों आ गया। ओके, तो अब देखो मैंने कहा मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, पर मैं बात ही नहीं करती, तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है? गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कड़वा ना बोलना कोई पॉजिटिविटी नहीं है। मीठा, सभ्य और सम्मानजनक मेरे बोल कितने होते हैं, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। क्लियर? हाँ, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं कभी किसी से कड़वा नहीं बोलती हूँ, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं मीठा कितना बोलती हूँ, सभ्य कितना बोलती हूँ, सम्मानजनक कितना बोलती हूँ, ये पॉजिटिविटी है। ऐसे ही मैंने कहा मैं कभी किसी को दुख नहीं देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे संसार यही कह रहा है आज, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ये तो सारा संसार कह रहा है। लेकिन पॉजिटिविटी संसार में बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है ना। तो दुख ना देना बड़ी बात नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट इज पॉजिटिविटी। लेकिन मैंने सुख कितनों को दिया, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे ही मैंने कहा मैं कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम नॉट पॉजिटिव येट, बट यस आई एम क्लोजर टू पॉजिटिविटी वन स्टेप। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है? मेरा वाणी और मेरी व्यवहार कितना रिस्पेक्टफुल रहता है, दैट्स व्हाट इज पॉजिटिविटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, पॉजिटिव थिंकिंग किसको कहेंगे? हर वो विचार, हर वो थॉट जो हमारे मन में चलता है, अगर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है तो वो पॉजिटिव है। जैसे अगर मान लीजिए आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें किसी की उन्नति समाई हुई है, किसी की आत्मिक उन्नति है, वो पॉजिटिविटी है। कोई आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें किसी का कल्याण समाया हुआ है, वो पॉजिटिविटी है। आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें शांति है, उसमें विजडम है, उसमें नॉलेज है, उसमें प्योरिटी है, उसमें शांति है, उसमें शक्ति है, किसी का मनोबल बढ़ रहा है, वो पॉजिटिविटी है। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब वैल्यू बेस्ड थॉट्स, वैल्यूज वाले थॉट्स। अब आप चेक करो 24 आवर्स के अंदर कितने ऐसे थॉट्स आपके मन से क्रॉस करते हैं जिसके अंदर वैल्यूज होते हो। मेरे को बताना नहीं, आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि वैल्यूज जो है वो पॉजिटिविटी का सोर्स होता है, और तो कोई सोर्स होता ही नहीं है पॉजिटिविटी का, वो वैल्यूज से ही आते हैं। तो हमारे वैल्यू बेस्ड थॉट्स कितने आ रहे हैं सारे दिन में? लोग कई बार आकर के हमसे कहते हैं, सिस्टर ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, वैसे मैं बहुत रिलीजियस हूँ, पर आजकल थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है ना? तो चेक करें हमारी पॉजिटिविटी का थर्मोमीटर क्या कह रहा है, वैल्यू बेस्ड थॉट्स कितने क्रिएट कर रहे हैं सारे दिन में। अब कुछ लोग दूसरों से पूछते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से क्या मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, क्या मैं नेगेटिव हूँ, क्या फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा, क्या मैं नेगेटिव हूँ, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं, आप देख के बताइए, शायद आपको तो पता लग ही जाता होगा।
मेरे को देखकर आपको क्या लगता है मैं कितनी पॉजिटिव हूँ? हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कितने पॉजिटिव हैं। आपको पता है, जो मानव मन अगर सही मायनों में ज्यादातर वैल्यू बेस्ड थॉट्स क्रिएट करता है तो उसका पहला प्रमाण प्रूफ उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। कैसे? वो मन ज्यादातर हल्का रहता है, उस मन में ताकत बनी रहती है, उस मन की शक्ति ज्यादातर बनी रहती है, उस मन का मनोबल बहुत अच्छा होता है, उस मन में शांति का वातावरण ज्यादातर बना रहता है। ये प्रूफ है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा मन भरा भरा रहता है, हमारा मन बहुत उथल पुथल में रहता है, बहुत सारी बातों का दबाव महसूस होता है, बहुत सारी उथल पुथल हलचल, बहुत ज्यादा उदास मन है, इरिटेटेड मन है, स्ट्रेस्ड मन है, तो फिर ये क्लियर इंडिकेशन है कि शायद नहीं, एक्चुअली ये इंडिकेशन है, हमारे मन का वातावरण हमको बताता है कि पॉजिटिव थिंकिंग में कमी आ गई है, जिसको थोड़ा सा बढ़ाने की मुझे जरूरत है। क्लियर कनेक्शन, ठीक है? क्योंकि हमारी सोल हमको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है, सिग्नल्स देती रहती है, इंडिकेशंस देती रहती है, हमें पता चलता रहता है, लेकिन हम उसको कभी ना कभी जानबूझ के नहीं करते हैं, पर कभी अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, तो हमें पता नहीं लगता। फिर हम दूसरों से पूछते हैं, आप बताओ, ठीक है? तो मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जितना ज्यादा कौन से थॉट्स होने चाहिए हमारे अंदर? पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा हमने कौन सी बात करी थी? नेगेटिव थॉट्स की बात की। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, बता सकते हैं? एग्जाम्पल? चिंता करना और गलत डिसीजन के ऊपर, लाइक नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो कि हमें गलत डिसीजन की तरफ ले जाते हैं। गलत डिसीजन की तरफ ले जाते हैं, हाँ। जैसे गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, नाराज होना, उदास होना, इरिटेट होना, मायूस होना, रोना आना, या खुद को किसी बात के लिए बार बार गिल्टी ठहराना, या फिर दूसरों को बार बार किसी बात के लिए दोषी ठहराते रहना, डिप्रेसिव फील करना या अकेलापन महसूस, है ना? उस समय जो थॉट्स क्रिएट होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत वीक होती है। जब हम डिप्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस समय जो थॉट्स होंगी उसकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो होने वाली नहीं है। वो क्वालिटी क्या होती है? वीक होती है। और वीक थॉट्स नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। वीक थॉट्स आर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? वैल्यू बेस्ड थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स, वीक थॉट्स नेगेटिव थॉट्स। एक तीसरी प्रकार का थॉट होता है जिसको कहते हैं नेसेसरी थॉट्स, आवश्यक विचार। कुछ तो हमारा मन जरूरी भी सोचता है ना। अब वो जरूरी क्या है? जैसे हर वो थॉट जो आपके मन में आता है जो आपके कर्तव्यों से संबंधित है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित है, जो आपके समाज में अकाउंटेबिलिटीज है, जैसे आपकी फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं, आपके करियर रिलेटेड कोई बात है, वो आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये तो जरूरी है ना। लेकिन एक चौथे प्रकार का भी होता है। अब इन तीनों के अलावा क्या चलता है हमारे मन में? पॉजिटिव, नेगेटिव, आवश्यक। इसके अलावा क्या चलता होगा? यस यस, यू सेड इट राइट। हाँ, अननेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स चलते हैं क्या? चलते हैं वेस्ट थॉट्स। ऐसे ही मन चल रहा है, कुछ काम नहीं है, बस चल रहा है, सोच रहे, कभी इसका, कभी उसका, कभी इधर का, कभी उधर का, कभी पास का, कभी आगे का, कभी पीछे का, चल रहा है। कोई मतलब नहीं है सोचने का, पर चल रहा है। तो देखो, वेस्ट थॉट्स सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। मन की शक्ति को घटाने वाला एक तो नेगेटिव थॉट है, लेकिन कभी कभी हम ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं, पर वेस्ट थॉट्स ज्यादा क्रिएट करते हैं। उससे भी हमारी शक्तियां लीक हो जाती हैं, लीकेज बहुत ज्यादा है। वेस्ट थॉट्स किसको कहेंगे? आप में से कोई बता सकता है वेस्ट किसको कहेंगे? फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हाँ, पर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? ज्यादा आगे का सोचते हैं, हाँ, पीछे का सोचते हैं। हाँ, देखो
एक है बीती हुई बातों को सोचना। मान लीजिए अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से कोई बात हो गई, या 1 हफ्ते पहले किसी से कोई बात हो गई, वो बात बीत चुकी है, वो समय भी निकल चुका है, वो व्यक्ति इस समय मेरे सामने भी नहीं है, लेकिन मेरा मन चल रहा है, वो कैसे दिया, वो कर कैसे दिया, बोल कैसे दिया, क्या समझ रखा है अपने आप को, क्या समझ रखा है मुझको, वगैरह वगैरह चल रहा है। अब मुझे पता है उस बात का कुछ नहीं हो सकता है, वो बात बीत चुकी है, लेकिन फिर भी समझते हुए भी, जानते हुए भी मेरा मन उस बात को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पास्ट की बातों को रिपीट ना करें, पर हमें शायद विधि नहीं आ रही है, पता नहीं लग रहा है कैसे करें। देखो, जितना जितना हमारा मन पुरानी बातों में सोचता रहेगा ना, पुरानी बातों में ज्यादा घूमता रहेगा, आज नहीं तो कल ऐसा मन कमजोर हो ही जाएगा, ये तो पक्का है। और कुछ लोग तो 3 तारीख सही बताते हैं, आपने ये चीज उस समय इनके सामने इस ड्रेस को पहना हुआ था, ऐसा हम काम कर रहे थे, उस समय आपने ये शब्दों में बोला, उस समय इतना बज रहा था, सब कुछ याद है उनको। And they are not ready to get rid of that past memories at all. They say, हम तो भूलेंगे ही नहीं। हम कहते ठीक है मत भूलो, बीपी, थायराइड, शुगर की गोलियां किसकी पड़ने वाली है, किसकी पड़ने वाली है, और किसी का कोई नुकसान हो रहा है? अच्छा ये बताओ, पुरानी बातों को पकड़ के रख के अपने मन में चला के हमने क्या कर लिया? कोई अच्छा काम कर लिया, किसी को बदल दिया, परिस्थितियों को बदल दिया, क्या कर लिया? हाँ जी, गुड मेमोरी भी नेगेटिव नहीं। गुड मेमोरी क्या होती है? गुड मेमोरी वो होती है जो आपको खुशी दे, शक्ति दे, दैट इज गुड मेमोरी, एंड दैट इज फाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज वेस्ट, है ना? तो पास्ट की ऐसी चीजें जो अब किसी काम की नहीं है, जो सिर्फ मुझे डिप्लीट करने वाली है। हाँ जी, there are thoughts which doesn't get out of our mind, right? हाँ, It's like naturally occurring. no, It's it is not natural. It's human nature. We think about past. Have you ever experimented something on human nature? No, but it's So we have to understand what nature is. Our true original nature, the human being, is the most powerful creation on the earth. हम नेचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि we have been experiencing, or we have seen it, people experiencing this, but we haven't studied about it yet. We haven't understood the reality of it. That is why we are talking on the subject today, to understand the nature of it. We are not of this nature, but we have acquired this nature. We are acquiring this weakness, and we are calling it as nature. This is not our true nature. We'll come to that also. अभी हम कहते हैं ना नेचुरली आ जाते हैं, मैं क्या करूं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तक तो मैंने उसको फिल्टर किया ही नहीं ना, अभी तक उसको चेंज करने का कोई मैकेनिज्म मैंने अपनाया ही नहीं ना। आप किसी चीज को रोकोगे ही नहीं तो वो तो आता ही रहेगा, पर वो नेचुरल है या नहीं है वो देखने की बात है। इसीलिए हम इस विषय पर आज बात कर रहे हैं। हमें वापस अपने ओरिजिनल नेचर को समझना है। आवर पावरफुल नेचर इज नॉट ऑफ क्रिएशन ऑफ, हम बेस थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए क्या हम मोस्ट पावरफुल बीइंग कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते, but we are capable of much more. But somehow over the period of time we got caught up into that. Now we have to get rid of it, and there is a way to it. और इसको ठीक किया जा सकता है। Good news is this is doable. We have a solution for it. ठीक है? तो हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए एक तो पुरानी बातों को बार बार मन में नहीं चलाना। जब पुरानी बातें मन में आती है ना, तो ना पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन होता है, ना फोकस हो पाता है, ना लाइफ के किसी काम में फोकस हो पाता है। आजकल पता है कौन सा समय चल रहा है? आजकल कुछ समय ही ऐसा चल रहा है कि लोगों के हाथ में काम कुछ होता है, लेकिन मेंटली या तो वो पीछे है या बहुत ज्यादा आगे है। मेकिंग सेंस? मेक सेंस? हाथ में काम कुछ है, लेकिन मेंटली वी आर नॉट अवेलेबल, माय माइंड इज नॉट fully available in the present. What is it to be fully available? हम लोग कहते हैं प्रेजेंट में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो, you will be happy. What is it to live in the present? To live in the present means
आजकल जो मेरी प्राथमिकताएं हैं लाइफ में, मेरी जो आजकल की प्रायोरिटीज हैं, उससे रिलेटेड मेरे थॉट मन में ठीक ठाक चल रहे हैं। दैट मीन्स आई एम मेंटली अवेलेबल इन द प्रेजेंट। लेकिन हाथ में काम कुछ है, या तो पीछे का सोच रहे हैं या बहुत ज्यादा आगे की चिंता करके दोनों को लाकर वर्तमान में सोचते हैं। वर्तमान क्या होता है? वेस्ट, राइट? इसलिए अगर मन को स्वस्थ रखना है, सबसे पहले पुरानी बातों से मुक्त होने की शक्ति पैदा करो, और वो शक्ति मिल सकती है। हम सब ये अनुभव करते हैं, मेडिटेशन इज द वे, मेडिटेशन इज द सोल्यूशन। अब कुछ लोग कहते हैं सिस्टर मेरे से मेडिटेशन में ट्राई बहुत करती हूँ, होता नहीं। अब आप एक बात बताओ, रॉकेट साइंस घर बैठे पढ़ते रहोगे तो आ जाएगा? साइंटिस्ट बन जाएंगे? विधि तो सीखनी पड़ेगी ना। तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो 100 नहीं 200% उसका रिजल्ट निकलेगा। लर्न राजयोगा मेडिटेशन, you don't have to spend a penny on this. Learn Raj Yoga meditation, practice it at home, and you will be able to get rid of it. What is unwanted in yourself? That is a guarantee. इसीलिए रोज अगर हम थोड़ा मेडिटेशन करते रहते हैं, लाइफ में शामिल रखते हैं, आप 24 आवर्स में 23 घंटे आपके, आधा घंटा रोज, चाहे 15-15 मिनट करके निकालो, 10-10 मिनट करके निकालो, सुबह दोपहर शाम करके निकालो, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकेंड, इतने में भी आप मेडिटेशन कर सकते हो अगर आपने सीखा है तो। और बीच बीच में अपने मन को बार बार, अब जैसे सिस्टर ने कहा, और ये बहुतों की प्रॉब्लम है कि बार बार थॉट्स आ जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। ग्लोबली आप पूरे संसार में किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर कभी जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि वहां every 1 hour there is a music which is played for 1 minute, या फिर कुछ ऐसे टाइमिंग्स हमारे फिक्स होते हैं। सुबह 3:30 बजे से शुरू होता है, because we get up early for meditations after 3 o'clock. So सुबह 3:30 बजे से शुरू होता है, रात को 9:30 बजे के बीच में 8 बार कुछ ऐसे टाइमिंग्स फिक्स्ड हैं जिसमें 3-3 मिनट का एक म्यूजिक, हल्का म्यूजिक, एक सॉन्ग प्ले होता है, फिक्स्ड सॉन्ग होता है। और कोई कुछ भी कर रहे होते हैं, हम लोग कोई भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, कोई कहीं पर भी है, वो उस समय 3 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए पॉज ले लेते हैं, चाहे खड़े हैं चाहे बैठे हैं, और उस 3 मिनट में 2 चीजें करते हैं, क्योंकि मन की शक्ति 2 चीजों से बढ़ती है। और वो कौन सी 2 चीजें हैं जिससे हमारा मेंटल पावर बढ़ता है, मेंटल वेलबींग को हम इंश्योर कर सकते हैं? वो 2 चीजें हैं। 1, सोल कॉन्शियसनेस, मतलब हम जो हैं इस आत्मिक शक्ति का बार बार एकाग्रता से अभ्यास करना, इससे हमारी सोल की पावर बढ़ती है। देखो 2 प्रकार के कॉन्शियसनेस संसार में है। लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में भी जीते हैं, है ना? मेरा ये नाम है, नाम को लेकर ही कितना बड़ा टॉपिक हो जाता है। मेरा ये पोजीशन है, मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ। सॉरी, आप ये सब नहीं है। You are a tiny point of light which is very powerful. You are a beautiful soul, you are a divine light playing these different roles. You are into different roles, but you're not that. आज आपने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। Are you a blue dress yourself? No, you're wearing a blue dress, but you must be Miss so and so, right? तो ऐसे ही now tomorrow you may wear a pink dress, so you're not Miss Pink, है ना? You're something, you are somebody, Mrs. so and so, wearing a blue dress today, wearing a pink dress tomorrow. ऐसे ही we have to understand one reality कि I am a soul, I am originally very peaceful, this is my reality, और ये reality है हमारे अंदर। अब जैसे कहा ना कि हम करें क्या, देखो हमारी इस आत्मिक शक्ति, ये जो आत्मिक शक्ति है, ये जो सोल पावर है ना, ये कुछ गुणों से, कुछ बेसिक वैल्यूज से बना हुआ है, जिसके कारण शास्त्रों में मनुष्य के लिए कहते हैं ये सतोगुणी है, सतोगुणी, सतो प्रधान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 7 बेसिक क्वालिटीज से बने हैं। दैट इज द इम्यूनिटी ऑफ आवर सोल, ठीक है? इम्यूनिटी ऑफ आवर सोल। तो
तो उस इम्यूनिटी को जब हम सदा बढ़ाकर रखते हैं, उससे क्या होता है, हमारी सोल पावरफुल रहती है। और वो 7 बेसिक क्वालिटीज क्या है, यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड। नॉलेज अर्थात विजडम, प्योरिटी अर्थात पवित्रता, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। दिस इज आवर इम्यूनिटी। लाइफ में कभी भी इनकी कमी आएगी ना, मन में शांति कम हो रही है, खुशी कम हो रही है, सुख कम हो रहा है, या कुछ भी इनमें से कम होगा, वी विल बी एट डिस्कम्फर्ट। जैसे इम्यूनिटी अच्छी होगी, जैसे ये गुण हमारे अंदर अच्छे से काम करेंगे, सोल विल बी वेरी पावरफुल। तो सारे दिन की दिनचर्या में बार बार हमारी अपनी सत्य स्वरूप में हम जितना एकाग्र होते हैं, बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं, आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल बीइंग, I am not this body but running this body. I am a power myself. I am peace myself. I work through this body. इसका अभ्यास बार बार। और दूसरा, भगवान की याद। आप लोग किसी न किसी रूप से ईश्वर को याद तो करते होंगे, याद तो करते होंगे, सभी किसी न किसी रूप से याद करते हैं। पर मन में एक डाउट उठता है सभी के आजकल, भगवान को याद तो करते हैं, फिर मन में प्रश्न उठता है, रानी भगवान तक मेरी आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमें नहीं पता। और आपको पता है, शांति का सागर है वो। भगवान को शांति का सागर कहते हैं। ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज गुड। इज द ओशन। ओशन मीन्स जो कभी खत्म नहीं होता, अखुद, अथाह। वो शांति का सागर है। हम उसकी संतान, हम सब भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे कहते हैं? त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, कहते हैं ना। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं भगवान के बच्चे, उसकी संतान उसको याद करे और हमारे मन में शांति न हो, ये असंभव है, असंभव, हो नहीं सकता, पर हो रहा है। एक तरफ हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, कर तो भावना से ही रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारे मन की शांति बढ़ क्यों नहीं रही? मन में वो शक्ति फील क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने सोचा दिया जलाना, माला पहनाना, ये करना, ऐसा करना, पाठ करना, करना करना करना। हम कर बहुत कुछ रहे हैं, मैंने बहुत कुछ किया किया किया, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरे अंदर चल क्या रहा है? कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से होना चाहिए था, तब आत्मा को स्ट्रेंथ करती। मन का कनेक्शन परमात्मा से एकाग्र होना था, अब वो कनेक्शन वीक होने के कारण पावर फ्लो नहीं हो रही है। उस कनेक्शन का नाम मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन करना सीखते हैं तो क्या होता है? परफेक्ट कनेक्शन, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास और परमात्मा की याद से सोल की पावर्स बढ़ती है, अर्थात मन की शक्ति बढ़ती है। और आप ये अगर करके देखें, 3 दिन करके देखिए, हो नहीं सकता कि यू विल नॉट फील द स्ट्रेंथ, यू विल फील द स्ट्रेंथ। ठीक है, आज हम थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा पॉज लेकर ये 2 चीजें करते हैं। इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड कहते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हम बीच बीच में हर 1 मिनट ये मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। अभी हम इसका थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे। तो इससे क्या होता है? बार 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 अगर स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे तो स्पीड हमारी कैसे, व्हीकल की स्पीड कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको पता है ना, बार बार ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो कंट्रोल में रहता है। ऐसे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा, कैन आई हैव 2 वॉलंटियर्स ऑफ यू प्लीज, फ्रॉम यू? 2 वॉलंटियर्स, एनी 2 गर्ल्स और एनी 2 बॉयज, आ जाइए आ जाइए। ओके ब्रदर, आर यू डन विद द फोन? Are you done with the phone? Please switch off and keep it away because you're sitting in the 2nd row and it will distract some people. Keep your earphones in the back and also your phones, right? Okay. Sisters, आपको क्या करना है? बहुत गुस्से के साथ ये देना बॉटल, बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ ये बॉटल को देना। आप मुस्कुराएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। और थोड़ा सा
वापस हो जाना। बस डोंट हर्ट हर। ओके, इतना ही मैक्सिमम गुस्सा आ सकता है या इससे ज्यादा आता है? नहीं आता है। ओके, तो आपको ये रोल प्ले करना चाहिए। एनीवेज, ओके, नाउ दिस बॉटल अगेन, give it to her with a lot of affection and love and with compassion. स्नेह के साथ आप उनको ये बॉटल दीजिए। अब थैंक यू, गिव इट अगेन, और ज्यादा स्नेह। Thank you. Okay, can I have a round of applause for me? Why did you applaud? Because I said, right? But what did you notice in the activity? Any observation in the activity? पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ? पहले बहुत गुस्से में दिया था, तब कुछ हुआ था, आपने कुछ नोट किया? पानी हिल रहा था। हाँ, disturbing energy, which is so right. और क्या हुआ था? Any other very good observation? Any other observation? हाँ जी? Negative approach and a positive approach. Right. But what was specific about both the approaches? Did you notice something else in the approaches? Anybody? Did you notice the speed in both instances? आपने स्पीड नोट किया? जब पहले गुस्से में दिया था तो स्पीड क्या थी? फास्ट थी। और जब स्नेह से दिया तो कैसा था? स्लो नहीं था, जितना जरूरी था उतना था। स्लो का मतलब ये 1 घंटे में पहुंच रहा है। स्लो नहीं था, पर जितना होना चाहिए उतना था। Which means, thank you sisters. देखिए, जब भी हमारे मन में बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में थॉट्स चलते हैं ना, कईयों को लगता है मेरा मन बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत फास्ट थॉट्स आ रहे हैं, चल रहा है, रुकने का नाम नहीं रहा। इसका क्लियर मतलब ये होता है हमारे, क्योंकि जो नेगेटिव होगा ना उसी का स्पीड ज्यादा होता है। तो अगर हमारे मन में बहुत तेजी से संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो और रूप ले लेता है, जिसको आजकल एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, बहुत सारे उसको क्लिनिकल नाम दे दिए गए हैं। तो लोग कहते हैं फिर पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, पता नहीं आजकल नींद नहीं आ रही, पता नहीं आजकल खाने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं आजकल मिलने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं आजकल किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं चलो साइकियाट्रिस्ट के पास। वी डोंट नीड अ साइकियाट्रिस्ट, नन ऑफ अस वुड नीड अ साइकियाट्रिस्ट। वी द सोल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, इन गुणों को अपने अंदर बढ़ा कर रखना है। मन में शांति, शक्ति, खुशी, आनंद, प्रेम जिसको स्नेह कहते हैं, और मनोबल, इसको बढ़ाकर रखना है। कैसे? अगर हम रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा राजयोग मेडिटेशन करते रहेंगे तो हम इसको इंश्योर कर सकते हैं। और एक गुणमूर्त आत्मा अर्थात गुणी मनुष्य आत्मा एक वैल्यूज से भरपूर सोल जो होती है ना, वो खाली नहीं होती है, भरपूर होती है। इसीलिए क्या होता है, वो अपनी जो भी कार्य करती है उसमें उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है। तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो कार्य जो भी करेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई करेंगे, चाहे प्रोफेशन में रहेंगे, घर के कोई कामकाज करेंगे, तो हमेशा वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले अपनी थॉट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना जरूरी है। नंबर 1, पॉजिटिव थॉट्स, वैल्यू बेस्ड थॉट्स। वो जितने ज्यादा सारे दिन में चलेंगे उतना मन सशक्त रहेगा। और दूसरा, नेसेसरी थॉट्स, पॉजिटिव एंड नेसेसरी से भरपूर रहे। लेकिन अगर वेस्ट और नेगेटिव चल रहा है तो फिर उसके लिए मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। अपनी मनसा शक्ति को सदा बनाकर रखना है। और जितना पुरानी बातों में जाएंगे या चिंता से कभी कोई काम नहीं होता है। आप काम करो, मेहनत करो, उसके लिए जो करना है वो करो, पर चिंता ना करो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है?
पॉसिबल तो है पर हमने अभी ट्राई नहीं किया है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है पर हमने ट्राई नहीं किया, अब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मन की शक्ति दो चीजों से, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस से बढ़ती है और भगवान की याद से बढ़ती है। अब कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, आज इंसान भगवान को याद पता कैसे करते हैं, कैसे याद करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्या कहते हैं? भगवान जी मेरा बच्चा पास करा देना, मेरा ना ये प्रमोशन करवा देना, मेरा ये ट्रांसफर करा देना, मेरा ये ट्रांसफर रुकवा देना, मेरा ये मकान बनवा देना, मेरा ये एग्जाम पास करा देना, बस मेरा ये काम करवा देना। आपको पता है इसको याद नहीं कहा जाता है, इसको भगवान की याद नहीं कहा जाता है, इसको फरियाद कहा जाता है। और फरियाद में शक्ति नहीं होती है, याद में शक्ति होती है। और याद से हो नहीं सकता कि हमको शक्ति ना मिले। आप रोज भगवान को याद किया करो, फरियाद नहीं। देखो आप में से कई फैकल्टीज में देख रही हूँ, आप लोग पेरेंट्स भी होंगे है ना। आप अपने बच्चे को पेंसिल, रबर, बुक्स, यूनिफॉर्म्स मांगने के बाद ही देते हो क्या? खाना मांगने के बाद ही देते हो, नहीं तो नहीं दोगे क्या? बताओ, सब कुछ मांगने से पहले, क्योंकि माता पिता को ईश्वर हमारा मकान नहीं बनवाएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं कराएंगे, वो तो हमको खुद करना है। लेकिन उस काम को करने के लिए जो फोकस चाहिए, जो मन की शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेंटल वेलबींग के लिए सबसे पहले थॉट की क्वालिटी इंप्रूव करो और दूसरा बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल्स करो। कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल? माइंड का ट्रैफिक कंट्रोल करो। उसमें कुछ एफर्मेशंस आते हैं। आपको एक वेबसाइट आज हम बताएंगे, उस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको एफर्मेशंस दिखेंगी, मेडिटेशन, छोटे छोटे वीडियोस, कमेंट्रीज भी अवेलेबल है, आप उसको रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम दिन में 3 बार आप जरूर प्रैक्टिस करिए इस चीज को। ठीक है, तो वी विल क्विकली रन थ्रू। सिस्टर कैन यू फ्लिप टू द चेंज द स्लाइड्स, थोड़ा सा और आगे जाइए। हमें क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, मेडिटेशन के बिना भी जीवन चल ही रहा है बहुत लोगों का। स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना भी अप नॉट डाउन, हाँ ऊपर की तरफ, हाँ गो अगेन, गो फर्दर है, हाँ चलिए आप और, हाँ ऐसे जाइए, ठीक है, ओके, हाँ स्टे देयर, थैंक यू। तो ये याद रहेगा सभी को, थॉट्स की क्वालिटी याद रहेंगी।